Hello students, I am Anusha Lal, your management faculty, and from today onwards we are going to start learning a new subject, that is brand management, which has been designed for marketing specialization students of semester 4. In this unit, we are going to study the concept of brand, significance of branding for consumers as well as for firms, concept of brand equity and all these things. Before getting into the technical details of the concept of brand or what is brand, let's just understand brand management in a nutshell. So if we talk about brand management as a layman's language, we can simply say it's nothing but managing a brand. Brand management और कुछ नहीं, एक ब्रांड मैनेज करने का प्रोसेस है, एक टेक्निक है. मैनेजमेंट वर्ड से हम सभी अवेयर हैं, इट्स नथिंग बट मैनेजिंग आवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ विथ मिनिमम रिसोर्सेज गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज अ ब्रांड? अ ब्रांड इज any name, logo or any unique identification that has been given to a product or service in order to make it distinguishable or identifiable in context of its competitors, products or service. Let's look at the technical definition that we have. A brand is a name, term, sign, symbol, design which intends to identify and design one seller's product or service, and it intends to identify and distinguish it from its competitors. Let's look at the definition that has been given by American Marketing Association. They define it as a name, term, design, symbol or any other feature that defines one seller's goods and services as distinct from those of other sellers' goods and services in order to satisfy customer needs and wants. Let's understand this with the help of an example. Here 4 toothpastes are given and no name, no identification has been given to any of these toothpastes, right? Only we know that this is toothpaste as a product. इस इमेज से हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि ये टूथपेस्ट एक प्रोडक्ट है विच इज टूथपेस्ट. कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई यूनिकनेस इसके साथ एसोसिएट नहीं की गई है. नाउ जस्ट टेल मी, इज इट इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई विच वन डू वी रियली वांट? नो, हम नहीं बता सकते ना. इस प्रोडक्ट, इन चारों को देखकर बिल्कुल समझ में हमारे नहीं आएगा कि इनमें से कौन सा टूथपेस्ट हमारे ज़रूरत को पूरा कर सकता है, राइट? नाउ द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज दिस. Just by assigning unique name, identification. अब इस इमेज में और इस इमेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इस इमेज में टूथपेस्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट है और इस इमेज में हर टूथपेस्ट की अपनी एक अलग पहचान है. Looking at this, we can easily identify which one do we really want. हमारी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा टूथपेस्ट हमें चाहिए होगा. So that is the importance of branding and this is why companies go for branding. इस केस में कस्टमर्स और मार्केटर्स दोनों के लिए बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि एज कस्टमर्स हमें कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करना है और एज मार्केटर्स उनके लिए भी ये इम्पॉसिबल है अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स से अलग बताना. टॉकिंग अबाउट दिस इमेज, वी एज कस्टमर्स कैन क्लियरली आइडेंटिफाई विच वन डू वी वॉन्ट एंड एज मार्केटर्स उनके लिए भी ईजी है अपने कॉम्पिटिटर्स से अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना. Yes, here in this we will talk about the extrinsic and intrinsic features of a brand. Intrinsic features का मतलब है जो within होते हैं, जो ब्रांड के अंदर हम कह सकते हैं which we cannot see and touch, those are intangible. Extrinsic features वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, feel कर सकते हैं, touch कर सकते हैं. Like for example, here if we see the bottle of Coca-Cola. How Coca-Cola has made itself unique and different from its competitors. अगर हम सिर्फ उसको देखकर समझने की कोशिश करें, it has a unique shape of bottle. पहले इनका एक Coca-Cola यूनिक नाम है जो किसी भी और ब्रांड के साथ नहीं है. एक यूनिक बॉटल है, कलर इन्होंने डिफरेंट रेड एंड वाइट यूज़ किया है. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स विच वी कैन सी. ये इनके एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम देख सकते हैं. इंटरनल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है विच वी कैन ओनली एक्सपीरियंस बट वी कैन नॉट सी. हाउ डू वी क्रिएट दैट? बाय पोजिशनिंग.
In positioning, what companies do, they try to differentiate their product into the minds of the consumer. They create a different position for their product into the minds of consumer. How do they do? With Coca-Cola, they have always advertised that Coca-Cola is something which we can use when we are celebrating. कुछ fun के लिए है, joy के लिए है, कोई celebration है, party है, तो हम Coca-Cola लेकर आते हैं. So this is the intrinsic feature जो हमें दिखता नहीं है, but कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में इस बात को इस तरीके से बैठा दी गई है कि जब भी celebration होगा, party होगी, we will think of Coca-Cola when it comes to aerated drinks, right? Now here is the assortment of many different brands. हर किसी के लोगो और यूनिक आइडेंटिफिकेशन से वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई वो कौन सी कंपनी है, कौन सा प्रोडक्ट है, किस सेक्टर में है, एवरीथिंग. नाउ some more logos I have kept. This is Audi, LG, Nike, McDonald's, Pepsi, Sony. By looking at the above symbol, we can easily identify the name of the company or product. This is the significance of a brand. And that is why we are studying brand. That is why companies are investing so much in creating a great brand value, because that helps us to identify just by looking at this कि वो कौन सी कंपनी है, किस प्रोडक्ट में डील करती है, एवरीथिंग, राइट. नाउ दीज आर द एलिमेंट्स. इन सब चीज़ों से ब्रांड बनता है हमारा, विच इज़ ब्रांड नेम, लोगो. स्पोक्स पर्सन आर द सेलिब्रिटीज और द ब्रांड एम्बेसडर्स वी कीप फॉर आवर ब्रांड, सिंबल, कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग. If I have created a brand, I need to build all these things. I need to have trust with people. It needs to have unique design, value, strategy, advertising, marketing, identity, everything. Advertising, marketing, why it's playing a major role? Because if you create something and you do not let your customers know about it, it's of absolutely no use. आपने ब्रांड बना लिया, आप अपने पास रखा, लोगों को नहीं बताया, उसकी मार्केटिंग नहीं की, उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं की, तो ये आपके किसी काम का नहीं है. So we need to do all these in order to create a great brand value. Now we have different types of brands. We have many different types of brands, but mainly we need to study about these three brands, namely personal brand, individual brand and family brand. Let's understand them in details. So personal brand, I'll just summarize whatever has been written over here. Personal brand is nothing but talking about the unique characteristic or unique feature of a person and making a person as a brand. That this means कि जब हम किसी सेलिब्रिटी को या किसी पर्सन को एक ब्रांड की तरह हम बना देते हैं, like I have mentioned Oprah Winfrey and all these names. We can take our Indian names like MS Dhoni, Amitabh Bachchan. Who all are they? They have become a brand. अब वो एक ब्रांड बन गए हैं, उनकी एक अलग पहचान हो गई है कि उनको अब आप क्राउड्स में अलग पहचान सकें. Okay, this is what your personal brand means. Now, this is very important to understand. Individual brand. Individual brand is also known as multi-brand. Why? I'll tell you. What is an individual brand? Using different brand names for different products. इस कंसेप्ट का मतलब है हर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिफरेंट नाम का यूज करना. Like here in the example we can see, I have taken the example of Hindustan Unilever. This is a FMCG company. What Hindustan Unilever does, it has many products under its product line, right? And this company has given unique identification and a different brand name to each and every product of its company, right? Like we can see many different brands, Knorr, Lakme, Dove. इनके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, इस कंपनी ने हर प्रोडक्ट को अपनी एक अलग पहचान और अपनी एक अलग नाम दी है. इसलिए इस कंसेप्ट को हम मल्टी ब्रांडिंग भी कहते हैं, बिकॉज बहुत सारी ब्रांड्स यहाँ पर यूज़ की जाती है. नेक्स्ट वी हैव इज फैमिली ब्रांड. फैमिली ब्रांड इज नथिंग बट मार्केटिंग several different products under the name of one brand name. Family brand. What is a family brand? It is marketing several different products under the same brand. In the previous slide we saw कि एक कंपनी अपने हर अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग नाम देती है.
इस कंसेप्ट में जस्ट ऑपोजिट है। एक ही ब्रांड नेम है मेरे पास और उस ब्रांड नेम के अंदर सारे प्रोडक्ट को मैंने सेट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल अमूल के किसी भी प्रोडक्ट की अपनी अमूल से अलग कोई आइडेंटिटी नहीं दी गई है, राइट। जैसे इंडिविजुअल ब्रांडिंग में था डव, लैक्मे, अलग अलग हर प्रोडक्ट के अलग अलग नाम हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी अमूल as a company has not given unique identity to each and every product of this company. Amul fresh cream, Amul milk, Amul butter, Amul ice cream, Amul lassi, whatever product Amul brings, they have given it one name and that is Amul. ये concept बिल्कुल एक family की तरह होता है, that's why it has been given the name of family brand. Like एक family में बहुत अलग अलग individuals होते हैं, mother, father, brother, sister, everyone, but हर कोई एक सरनेम के थ्रू कनेक्टेड होता है, राइट। सो द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। एक नाम है, उसके अंदर हम जितने मर्जी उतने प्रोडक्ट्स लेकर के आएंगे। वी ऑल्सो कॉल दिस एज अम्ब्रेला ब्रांडिंग। अम्ब्रेला क्यों? एक छतरी के नीचे जैसे सारी चीजें रहती है, द सेम वे प्रोडक्ट्स आर बीइंग केप्ट ओवर हियर अंडर वन ब्रांड नेम। ब्रांडिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड। ब्रांड क्या है हमने देखा, ब्रांडिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ब्रांड क्रिएट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। ब्रांड मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग ब्रांड्स। दिस इज योर ब्रांड मैनेजमेंट। एज वी डिस्कस्ड इन द वेरी बिगिनिंग, ब्रांड मैनेजमेंट क्या है? ये एक आर्ट है ब्रांड को क्रिएट और उनको ओवर द टाइम मैनेज और मेंटेन करने का। So while doing brand management you need to do certain things, that is you will provide your customers, you will have strong impression on your customers, you will use some unique logo. Reputation means you need to remind your customers time and again about your brand, because we humans tend to forget things very easily. जो हमें नहीं दिखता है वो हमारे दिमाग से बाहर चला जाता है, right? We often say out of sight is out of mind. That's why they need to keep on repeating and reminding customers about their brand. Need to create unique value proposition, have competitive price, product benefits of course. सारी चीज़ें अच्छी होंगी बट आपकी प्रोडक्ट में कोई बेनिफिट नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, people are not going to buy it. So all these things you need to do in order to manage brand properly. Now we will study about the significance or importance of branding. Why branding is important for consumers. The first point here says brands provide peace of mind. Brands हमें दिमाग की शांति provide करता है। कैसे? If you are buying something, अगर आपने कोई ब्रांड खरीदा and you have a very positive experience with that, आपका experience बहुत अच्छा है उस ब्रांड के साथ, you are very happy after buying it. वो डोंट यू थिंक यू विल बी एट ईज कि चलो नाउ आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम अगर ये ब्रांड खरीदना हुआ तो मेरे से कोई गलती नहीं होगी और कुछ मेरे पैसे बर्बाद नहीं होंगे, आई एम सेफ कि ये ब्रांड अच्छा है, नेक्स्ट टाइम भी ये ब्रांड अच्छा ही परफॉर्म करेगा। सो यू आर एट ईज, आपका दिमाग शांत है यहाँ। सो दिस इज द बेनिफिट दे आर प्रोवाइडिंग। ब्रांड सेव डिसीजन मेकिंग टाइम, ऑफ कोर्स ब्रांड्स आर देयर टू क्रिएट आइडेंटिफिकेशन एंड यूनिकनेस। You visit a general store and if you want to buy hair oil, suppose आपको hair oil खरीदना है, अगर brands नहीं होते how difficult it would have become, right? It would have been really very difficult. समझ में ही नहीं आता कौन सा hair oil मेरे लिए ज़रूरी है, कौन सा hair oil खरीदना चाहिए। But now when brands are there, it saves your decision making time. आपको पता है कि आपको अगर सिल्की स्मूथ हेयर की ज़रूरत है तो सपोज दिस पर्टिकुलर ब्रांड विल सेटिस्फाई योर नीड्स एंड वांट। अब आपको डिसीजन लेने में टाइम लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ब्रांड्स क्रिएट डिफरेंस, दैट इज़ व्हाट वी आर स्टडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग कि ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है, अपने कॉम्पिटिटर्स से प्रोडक्ट को ये डिफरेंट दिखाता है, तो आपके लिए चूज़ करना ईजी है। ब्रांड्स प्रोवाइड सेफ्टी। हाउ सेफ्टी? लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। Suppose you visit a place that is completely unfamiliar to you. आप एक नई जगह पर जाते हैं, वहाँ आपको किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं है, हर चीज़ आपके लिए अनफेमिलियर है। You are hungry and you want to eat something. All you can see around yourself is local restaurants. आपने अपने आसपास खाने के ऑप्शंस ढूंढे और आपको सिर्फ लोकल रेस्टोरेंट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। You are not very happy
in choosing any one of them. Why? Because you don't know कि एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, इनकी क्वालिटी कैसी होगी, हाइजीन मेंटेन करते हैं या नहीं, कैसा कौन से क्विजीन ये सेल करते हैं. यू डोंट नो एनीथिंग. यू आर वेरी डिस्टर्ब विद दिस. When you see an outlet of Domino's over there, don't you think you are feeling relaxed now? Why relaxed? Because you don't have the fear of getting disappointed. आपको निराश होने का डर नहीं है, बिकॉज आपको पता है डोमिनोज में कैसे पिज्ज़ाज मिलते हैं, क्या रेंज, क्या क्वालिटी, ये सब सारी चीज़ें आपको पता है. एंड हाउ दिस हैज़ हैपेंड? बिकॉज ऑफ ब्रांड. उन्होंने एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई है खुद की. अब आपको पता है कि डोमिनोज का पिज्ज़ा लेना है मतलब ये फीचर्स और ये बेनिफिट्स तो मुझे मिलने ही मिलने हैं. सो यू आर फीलिंग सेफ. ब्रांड्स प्रोवाइड सेफ्टी. नेक्स्ट, brands add value. Definitely they add value to the product. In the previous slide we saw the example of toothpaste. First image was a generic product, a normal toothpaste, and the second image shows us how brands are important. ये एक value addition करता है. If I provide a generic product to you and I say this is for 100 rupees and I provide the same product in terms of like branded product, उसी generic product में ब्रांड ऐड कर दी गई. डोंट यू थिंक वी आर रेडी टू पे मोर फॉर दैट प्रोडक्ट? वी डू दैट, राइट? एक जेनेरिक प्रोडक्ट अगर सस्ते में भी हो नहीं खरीदते हैं, सेम प्रोडक्ट के साथ कोई ब्रांड नेम एसोसिएटेड होता है, ज़्यादा पैसे देकर भी उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं. दैट इज़ योर एड वैल्यू. मीन्स उस प्रोडक्ट को कुछ वैल्यू एडिशन मिल गया है, वो जेनेरिक प्रोडक्ट से अब ऊपर चला गया है कैटेगरी में. हियर व्हाट कैन हैपन? कंपनीज कैन डिमांड प्राइस प्रीमियम. वो जितना मर्जी प्राइस डिमांड कर सकती है बिकॉज वी आर रेडी टू पे फॉर दिस एडेड वैल्यू. ब्रांड्स एक्सप्रेस हु वी आर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई वी आर सो ब्रांड कॉन्शियस दीज डेज. ब्रांड्स ये बताता है कि वी एज एन इंडिविजुअल हु वी आर, ये हमारी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वाई डू पीपल लाइक टू पे मोर एंड मोर फॉर अ ब्रांडेड प्रोडक्ट? उनको भी पता है कि जेनेरिक प्रोडक्ट में भी सेम बेनिफिट्स मिलने हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट में भी वही फीचर्स हैं, वही बेनिफिट्स हैं, बट वी पे मोर फॉर अ ब्रांडेड प्रोडक्ट. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस. वी वॉन्ट टू शो इन आवर सोसाइटी कि हम कौन हैं, राइट? पीपल बाय एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स. वो कुछ प्रीमियम ब्रांड्स, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदते हैं इन ऑर्डर टू शो, see how elite I am and I am capable of paying this much, I can afford this much. So this is for creating our own image in the society. Brands give consumers a reason to share. This is something which we are doing every time, reason to share. If we are satisfied with a particular brand, we do share it with our friends and relatives. Now, after understanding the concept why brands are important for consumers, let's understand why brands are important for firms. This must be of some importance, right? That's why they are investing so much money in order to create and maintain a great brand value for their company. So how it helps people identify their products? Of course, अब मार्केट में मेरे भी प्रोडक्ट हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स के भी प्रोडक्ट हैं, कस्टमर्स कैसे समझेंगे कि मेरे प्रोडक्ट क्यों अच्छे हैं? तो मुझे ब्रांड क्रिएट करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर कि मैं बता सकूं अपने कस्टमर्स को कि मेरा ब्रांड मेरे कॉम्पिटिटर्स से इस एस्पेक्ट में ज़्यादा बेटर है. इट इज़ वॉट मेक्स अ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर. द सेम थिंग अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग करता है, अपने प्रोडक्ट को अलग करता है. ब्रांडिंग हेल्प्स अ कंपनी इन कनेक्टिंग विद इट्स कस्टमर्स इमोशनली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई वी बिकम लॉयल टूवर्ड्स अ ब्रांड. कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर ग्रैंडफादर यूज्ड a particular brand, like we say Tata Salt. Tata Salt is something which we can emotionally connect to. It says देश का नमक. We start feeling patriotic कि चलो ये प्रोडक्ट खरीदना मतलब I am doing something for my country. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने यूज़ किया ये सॉल्ट, मेरे पेरेंट्स ने यूज़ किया, आई एम यूजिंग द सेम थिंग. एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है. Even if other products, other brands are there in the market, I'm not thinking about them. क्यों? क्योंकि मेरा इसके साथ एक ऐसा emotional connect है that all I want is to buy Tata Salt. It helps your consumers know what to expect. आपके customers को ये clearly बताता है कि ये आपसे क्या expect कर सकते हैं. Like we talk about iPhone.
iPhones आर वेरी एक्सपेंसिव, सेम फीचर्स के साथ दूसरे ब्रांड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं इन बजट, बट iPhone यूजर्स नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एग्जैक्टली फ्रॉम द कंपनी कि इफ आई एम बाइंग iPhone आई विल डेफिनेटली गेट दीज फीचर्स। एज अ कस्टमर आई नो इस कंपनी से मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हो सकती है। ब्रांडिंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू अट्रैक्ट क्वालिटी टैलेंट। क्वालिटी टैलेंट मीन्स अगर आपका ब्रांड अच्छा है, आपका मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, तो आपके साथ जितने एम्प्लॉयज़ होंगे, जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ होंगे, वो आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। लाइक गूगल वी कैन से। इट हेल्प्स यू बिल्ड ट्रस्ट विथ मेनी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। हु ऑल आर स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स आर everyone those who are interested in your business like your customers, employees, government, suppliers, shareholders। अब इन सब की नज़र में भी आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा और वो आपके साथ काम करना चाहेंगे। It allows you to be clear with your organization strategy and stay focused। When you create a brand strategy, you have certain things in your mind कि ये strategy आपने किन के लिए create की है, कौन आपके प्रोडक्ट और ब्रांड को खरीद सकते हैं। There is a strategy, right? तो ये ब्रांड आपको अपने स्ट्रैटेजी से डेविएट होने नहीं देता है। बिल्डिंग योर ब्रांड हेल्प्स यू ग्रो योर बिजनेस। ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा मेरा ब्रांड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लोग मेरे ब्रांड को पसंद करेंगे, उतना ज़्यादा वो खरीदेंगे और मेरा बिजनेस उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ब्रांड इक्विटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। Brand equity is a marketing term that describes the commercial value of a brand. That value is determined by consumer perception of an experience with the brand. What is brand equity? Brand equity is the commercial value of a brand. Commercial value मतलब यहाँ financial terms में बात की जाएगी। ये वैल्यू कब और कैसे डेवलप होता है? कंज्यूमर के परसेप्शन और उनके एक्सपीरियंस से जो ब्रांड के साथ है। आई एम जस्ट मेकिंग इट सिंपलर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इफ सपोज आई एम वेरी satisfied with a particular brand, I am very happy, I always have positive experience with XYZ brand, don't you think I am going to buy that brand again and again? अगर मेरा किसी ब्रांड के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी हैप्पी आफ्टर परचेजिंग दैट ब्रांड, इट्स ऑब्वियस कि मैं उस ब्रांड को बार बार जाकर परचेज करूँगी। बार बार मेरे परचेज से क्या होगा? कंपनी में रेवेन्यू जनरेट होगा एंड दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल वैल्यू ऑफ अ ब्रांड। If people think highly of a brand, it has positive brand equity. When a brand consistently underperforms and disappoints to the point where people stops recommending it to other and start avoiding it, people start recommending it to people that avoid it, then it is your negative brand equity. Brand equity दो टाइप की है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कब है? जब आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बहुत ज़्यादा और बार बार सोचते हैं। नेगेटिव कब है? जब कोई ब्रांड आपको बहुत ज़्यादा निराश कर रहा है, बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है, इस हद तक डिसअपॉइंट कर रहा है कि ना तो आप खुद खरीदते हैं ना आप किसी को सजेस्ट करते हैं। रादर यू स्टार्ट सजेस्टिंग कि इस ब्रांड को मत खरीदो। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इफ सपोज आई से थिंक ऑफ अ ग्लूकोज बिस्किट, विच ब्रांड कम्स टू योर माइंड? आई डोंट नो अबाउट यू बट फॉर मी इट्स पार्ले जी। ग्लूकोज बिस्किट का मतलब मेरे लिए पार्ले जी है। देन व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? मेरे लिए पार्ले जी की ब्रांड इक्विटी बहुत ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज जब भी मेरी रिक्वायरमेंट ग्लूकोज बिस्किट खरीदने की होगी, आई विल गो एंड बाय पार्ले जी ओनली। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ब्रांड इक्विटी। नाउ वी कैन रीड सम लाइन्स हियर। इट कैन इंक्रीज द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ ब्रांड। ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा कोई ब्रांड को खरीदा जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी फाइनेंशियल वैल्यू बढ़ेगी। Brand equity is an important intangible asset that has psychological and financial value. Very important, intangible asset. Asset तो है ये कंपनी का, कुछ possession है कंपनी के पास, उसकी ब्रांड की वैल्यू। Intangible क्यों है? क्योंकि इसको देख नहीं सकते। It's not like a furniture or a machine that has been kept and we can see, touch everything. ये ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते, right? We can experience it. अपना ग्राफ देख सकते हैं that yes people are buying my brands more and more, तो मेरी इक्विटी ज़्यादा है ब्रांड की।
इसके दो एस्पेक्ट हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं. व्हाई दीज टू एस्पेक्ट? साइकोलॉजिकल, बिकॉज इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस स्लाइड वी स्टडीड ब्रांड इक्विटी डिटरमाइन कैसे करते हैं, कंज्यूमर के परसेप्शन और एक्सपीरियंस से. परसेप्शन क्या है? हम किस तरीके से किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं. एक्सपीरियंस के बाद भी हमारी साइकोलॉजी पे कुछ इफेक्ट होता है, अच्छा लगा नहीं लगा, तो इसलिए साइकोलॉजिकल. फिनेंशियल क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है आप उस ब्रांड को कितना ज़्यादा परचेज करेंगे, राइट. Companies can create brand equity for their products by making them memorable, easily recognizable and by providing superior quality. कुछ ये 3 बेसिक फीचर्स हैं जिनके थ्रू कंपनी ब्रांड इक्विटी क्रिएट कर सकती है. उनका ब्रांड इजीली याद होने वाला हो, उनका ब्रांड इजीली मेमोरेबल हो, डिस्टिंग्विशेबल हो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छी क्वालिटी का हो. आपने कितना अच्छा ब्रांड बना दिया, सबको बता दिया, लोग इजीली याद रख सकते हैं, एवरीथिंग फाइन, बट इफ यू फेल टू परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, नथिंग इज गोना हैपन. टेक योर ओन एग्जाम्पल. आपको कोई ब्रांड बहुत अच्छा लग रहा है, आपको हमेशा याद रहता है उसके बारे में, बट अगर वो ब्रांड अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता है, वी आर नेवर गोइंग टू बाय दैट अगेन. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू बिल्ड अ ग्रेट ब्रांड इक्विटी. How to develop brand equity? I'm going to show you a model, a very basic model which will tell us how we can build our brand equity. Creating awareness, the first and the foremost thing. You have a brand which you need to introduce to your target customer. Target customer कौन होंगे? वो जो आपको पता है आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, आपके ब्रांड को परचेज कर सकते हैं. उनको सबसे पहले अवेयर कराना है कि ऐसा ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है. Recognition, after your customers have been made aware of a particular brand, they start recognizing it. अभी तक आपने एडवर्टिजमेंट से जगह जगह पोस्टर्स लगा के किसी भी तरीके से अपने कस्टमर्स को बता दिया है कि मार्केट में वो ब्रांड आ गया है, राइट. बहुत बार किसी ब्रांड के बारे में हम एडवर्टिजमेंट देखते हैं, बिलबोर्ड देखते हैं, उसके बाद हम उसको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं. अब उस ब्रांड को हम जब भी किसी स्टोर में देखेंगे, वी कैन रिकॉग्नाइज कि अरे दिस इज द सेम ब्रांड आई वाज एक्सपोज्ड टू. देन कम्स ट्रायल. आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द ब्रांड, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस ब्रांड स्टैंड्स फॉर. ये एक स्पोर्ट शू का ब्रांड है, ये एक अपैरल ब्रांड है, ये क्या है, अब आप समझने लगे हैं. नाउ यू विल गिव इट अ ट्राई कि ओके ठीक है, ट्राई करके देखते हैं हाउ इट वर्क्स. आफ्टर ट्रायल, व्हेन यू बिकम सेटिस्फाइड, जब उस ब्रांड ने आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया, आप हैप्पी हो उस ब्रांड से, नाउ यू स्टार्ट प्रेफरिंग इट. अब आप उसको बार बार खरीदने के बारे में सोच सकते हैं. इस स्टेज में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज टू फुलफिल देयर प्रॉमिस. उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया ना व्हेन दे वर मेकिंग यू अवेयर ऑफ द ब्रांड. अगर वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं होगा तो आप उसको नहीं खरीदेंगे. इफ यू आर फीलिंग गुड, सेटिस्फाइड, देन यू विल प्रेफर दैट ब्रांड अगेन एंड अगेन. Loyalty is where you are buying that brand again and again. जब भी उस प्रोडक्ट कैटेगरी की बात आती है, वो एक ब्रांड आपके दिमाग में आता है और अब आप उस ब्रांड को ही बार बार जा करके परचेज करते हैं. यू हैव बिकम अ लॉयल कस्टमर फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड. नाउ आर्थर हैज defined brand equity on other 3 bases. What are they? Cost based, price based and consumer based. Let's understand what is cost based brand equity. This represents the money that has been spent on the brand to date, the value at which the brand can be sold to another firm. Cost का मतलब, cost term का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में जो पैसा खर्च होता है. कॉस्ट बेस्ड ब्रांड इक्विटी मतलब एक ब्रांड में आज की डेट तक कितना ज़्यादा पैसा लगाया गया है और अगर उस ब्रांड को किसी कंपनी को सेल करना पड़ा तो मेरे पास कितने पैसे आएंगे, राइट. अगर मेरी ब्रांड इक्विटी, ब्रांड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो कोई भी कंपनी बहुत अच्छे पैसे देकर वो ब्रांड खरीद सकती है, नहीं है तो कोई खरीदेगा ही नहीं. दिस इज योर कॉस्ट बेस्ड ब्रांड इक्विटी. Now price based brand equity. Price based brand equity is the amount you can charge from your customers. Price मतलब जो अमाउंट आप अपने कस्टमर्स से चार्ज करते हैं. अगर किसी ब्रांड की इक्विटी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, कंपनीज उसके लिए प्रीमियम प्राइस डिमांड कर सकती है.
वी ऑफन सी कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस बस बढ़ते चले जाते हैं, एंड वी आर द वंस हु बाय एट एनी गिवन प्राइस। क्यों? उस ब्रांड की इक्विटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। उस प्रोडक्ट कैटेगरी में जब भी किसी ब्रांड को ढूंढने की बात आती है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी ब्रांड के बारे में सोचते हैं, और ये बात कंपनीज को पता हो जाती है। दैट्स वाई वो हमसे प्रीमियम चार्ज करना शुरू कर देते हैं, एंड वी स्टार्ट पेइंग इट। दैट इज योर प्राइस बेस्ड ब्रांड इक्विटी। कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी इज द हार्ट ऑफ दिस अप्रोच इज द कंज्यूमर नॉलेज अबाउट द ब्रांड इन स्पॉटलाइट। मतलब इस कंसेप्ट का कोर इंग्रेडिएंट क्या है कि मेरे कस्टमर मेरे ब्रांड के बारे में कितना ज़्यादा जानते हैं और कितना ज़्यादा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। दिस कंसेप्ट इज देयर इन योर नेक्स्ट यूनिट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल्स। फॉर नाउ दिस मच इज देयर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेट्स प्रोसीड फर्स्ट फर्दर विद द एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड इक्विटी। These are some of the components or elements that make up brand equity. ये कुछ elements हैं जो brand equity बनाने में help करते हैं. Let's understand them individually. Brand image. Brand image मतलब the set of belief that a customer hold about a brand. Image का simple meaning होता है impression. अगर हम layman terms में बात करें तो किसी की इमेज मेरे मन में अच्छी है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर इंसान का इंप्रेशन मेरे लिए अच्छा है। द सेम गोज विथ ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज मतलब किसी ब्रांड के बारे में कस्टमर्स क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, उसका कैसा इंप्रेशन हमारे दिमाग में है, दैट इज ब्रांड इमेज। ब्रांड आइडेंटिटी इज किसी भी ब्रांड के साथ कुछ ऐसी फीचर्स ऐड करना, सर्टेन विजिबल एलिमेंट्स ऐड करना जो देखते ही हम ब्रांड को पहचान सकें। आइडेंटिटी का मतलब पहचान है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हाफ ईटन एप्पल, राइट? यहाँ बिल्कुल भी कंपनी के बारे में कोई बात नहीं की गई है, बट इसको देखकर वी कैन क्लियरली से दिस इज द लोगो ऑफ एप्पल कंपनी, राइट? वाई दिस हैज हैपेंड? इस कंपनी ने अपने ब्रांड के साथ कुछ विजिबल एलिमेंट्स जोड़े, वो उसका लोगो है जिसके थ्रू हम उस ब्रांड को इजीली पहचान सकते हैं। दिस इज मैकडॉनल्ड्स, एक बिग एम है एंड वी कैन इजीली से दैट दिस इज मैकडॉनल्ड्स। लिखा हुआ कुछ नहीं है वहां पर, बट ये उस ब्रांड का एक विजिबल एलिमेंट है, लोगो है उसका, जिससे हम उस ब्रांड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस, this is the concept that we were studying in the previous slide. Brand awareness is making your customers aware about a brand, introducing your brand to your potential or target customers. अपने potential customers को अपने brand के बारे में बताना कि we are in the market and yes we do exist, right? Brand loyalty, when a customer starts demanding your brand over your competitor, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपके कॉम्पिटिटर के सामने आपके ही ब्रांड को बार बार प्रेफर करते हैं, दैट इज बिकमिंग लॉयल टूवर्ड्स दैट ब्रांड। ब्रांड एसोसिएशन आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्रांड विच कम इनटू कंज्यूमर्स माइंड व्हेन द ब्रांड इज टॉक्ड अबाउट। ब्रांड एसोसिएशन वर्ड का मतलब क्या है? अ काइंड ऑफ कनेक्शन। सो ब्रांड एसोसिएशन इज समथिंग, जब भी उस ब्रांड के फीचर्स के बारे में बात होगी वो ब्रांड ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ मैकडॉनल्ड्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैकडॉनल्ड्स विदाउट मेंशनिंग इट्स नेम, आई एम ओनली सेइंग अ बर्गर जॉइंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सर्व्स ग्रेट बर्गर, कम्स इन बजट, डोंट यू थिंक यू आर ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? ये कुछ फीचर्स, कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में सुनकर आपने खुद के दिमाग को सीधे मैकडॉनल्ड्स के साथ एसोसिएट कर लिया, कनेक्ट कर लिया, उसके साथ जोड़ लिया, बिना कंपनी का नाम सुने, बिना प्रोडक्ट के बारे में कुछ जाने, ब्रांड के बारे में कुछ जाने, सिर्फ एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर आपको समझ में आ गया दैट आई एम टॉकिंग अबाउट मैकडॉनल्ड्स। दिस इज व्हाट ब्रांड एसोसिएशन मीन्स। This is customer perception, very important, because right from the beginning all we are talking about customer perception and experience when it comes to brand equity. Here customers perception can also be considered as perceived value. Perceived value is the customer's evaluation of the merits of a product or service and its ability to meet their needs and expectations, especially in comparison with its peers.
कस्टमर परसेप्शन को हम यहाँ परसीव्ड वैल्यू भी कह सकते हैं। परसीव्ड वैल्यू का मतलब है मी एज अ कस्टमर हाउ आई एम व्यूइंग अ पर्टिकुलर ब्रांड्स वैल्यू, मतलब मेरे नज़र में एक पर्टिकुलर ब्रांड की क्या वैल्यू है, मैं उसको किस तरीके से देखती हूँ, मेरे मन में क्या आता है उस ब्रांड से कि क्या ये मेरे ज़रूरत को पूरा कर सकता है, हाँ या ना। इफ़ आई फील दैट येस दिस इज़ द ब्रांड विच कैन फुलफिल माई रिक्वायरमेंट्स, no matter what, I'm always going to opt for that particular brand in comparison with its peers. Peers मतलब उनके साथ के जितने brands होंगे, competitor brand होंगे, उनके comparison में I'm always going to buy that brand which I feel कि मेरी ज़रूरत को पूरा करने की ability जिसमें है। Now at last we need to study the importance of brand equity. Of course इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, कुछ तो importance होगा उसका. So here are few importance that I have mentioned. Increases market share. Obvious, don't you think this is obvious? जब मेरे ब्रांड को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, तो डेफिनेटली मेरे मार्केट का शेयर बढ़ता चला जाएगा, राइट? प्रीमियम प्राइस, सॉरी प्राइस प्रीमियम, इट्स द सेम थिंग. व्हाट इज दिस? पॉजिटिव है अगर मेरी ब्रांड इक्विटी, लोग मेरे ब्रांड के बारे में बहुत सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं. आई कैन चार्ज वट एवर आई वॉन्ट. वट एवर आई वॉन्ट मीन्स ऐसा नहीं है कि 100 रुपये की चीज़ के लिए आई चार्ज 1000 रुपीज़. कॉम्पिटिटिव होना चाहिए प्राइस, बट येस आई कैन चार्ज 200 रुपीज़ बिकॉज आई नो पीपल आर लॉयल टूवर्ड्स माई ब्रांड, दे हैव पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी. वो 100 का 200 भी देने को रेडी हो सकते हैं. असेट, ब्रांड इक्विटी इज एन इंटैंजिबल एसेट, वी स्टडीड जस्ट नाउ, क्योंकि ये हमारा पोजेशन है जो मेरी कंपनी ओन करती है, दैट इज वाई इट्स एन एसेट. Extension of product line, this is very important and this is the further application of brand equity we can say. Like एक company, we took the example of Amul, let's just recall that. Amul brand बहुत ज़्यादा famous है, बहुत अच्छी brand value है उस brand की, right? अच्छी brand equity है, positive brand equity है. We think highly of Amul and we think good about Amul. Now what the benefit that they are taking out of it? अब अमूल चाहे तो अपने इस नाम के अंदर वो कभी लस्सी इंट्रोड्यूस करती है, कभी बटर मिल्क करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ लेकर आती है, डिफरेंट आइसक्रीम्स है. प्रोडक्ट लाइन, वो अपने प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? हो सकता है अमूल अभी तक कोई स्नैक्स आइटम सेल नहीं करता है, बट इन फ्यूचर दे माइट गो फॉर इट. वो अपना प्रोडक्ट लाइन बढ़ा दे, कुछ स्नैक्स सेल करना शुरू कर दे. वी विल एट लीस्ट गो एंड ट्राई दैट प्रोडक्ट. वाई? क्योंकि अमूल की वैल्यू हमारे नज़र में बहुत अच्छी है, अमूल ब्रांड की इक्विटी हमारे लिए बहुत है, इसलिए वो ब्रांड कोई भी नया प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो हम ट्राई तो उसको डेफिनेटली करेंगे. एंड आफ्टर दैट इट्स ऑल द मैटर ऑफ देयर परफॉर्मेंस. इफ वी गेट सेटिस्फाइड विल बाय इट अगेन एंड अगेन, इफ वी डोंट देन वी माइट नॉट. सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ brand equity that we have studied, and we are going to continue with further topic and some detailed explanation in next unit. Thank you so much.